Respectful Dandavat Pranam, Rashid of Gurupad Padma, Nityalila Vishnu Vishnupad, Ashtutara Sarmad Bhakti Vedanta Silavam Goswami Maharaj, Nityalila Vishnu Vishnupad, Ashtutara Sarmad Bhakti Vedanta Silavam Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam. Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Gandhasya Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Just I want to speak few words. We also discuss about Bhajan Rasha Katha. Yeah? Bhajan Rasha can read two kinds of people. One is called Jatarati Sadhak, another is called Vajatarati Sadhak. हिंदी बोले कि इंग्लिश है? मतलब क्या है? ये कि हाँ बैठो। हाँ हाँ आरती करना है। आरती किया था सुबह किया ना, क्यों करना है? हाँ कथा कर लिया। Jatarati sadhak and Vajatarati sadhak. Jata means roti towards Krishna, manifest one's heart, is called Jatarati sadhak. Roti means deep attachment towards Krishna. That is called Rati. Rati gara hoile prem nam dhare. When the roti towards Krishna become very condensed, then manifested in the form of prem. So now come in this way. What is the symptoms of roti or bhav? Khandira varta kalaktam virakti manasunnata asavando samatkanta namagani sakti tad gunanukhane priti tad vasati stole tajyo surajata bhavanukuri. Lord Goswami Pad explained, roti manifests one's heart with the 9 external symptoms. समझ में आया? शांति, समागुण. Shanti means, Sama means, and his mind absorbed with Krishna. And Parikshit Maharaj. When Parikshit Maharaj, he heard, after 7 days, the black serpent, Takshak, will come and bite him, then he will die. But Parikshit Maharaj, he became very happy. Why? Because Parikshit Maharaj is thinking, now I will live 7 days. This is what? Guarantee. We have no guarantee how long we'll be in this body. Any second, any moment, we will give up this body. But Parikshit Maharaj, he told, I will stay 7 days. After 7 days, I will die. But we have no guarantee. So when Parikshit Maharaj, he heard this, his mind is very calm and quiet and peaceful. Okay? And he is very happy. Okay? Why? Because in 7 days I can perform bhajan and sadhana to Krishna. Listen Hari Katha. Okay?
So for this Parikshit Maharaj is the best example of Shanti. Shanti, Abharta Kalatam. Second, Abharta Kalatam means he does not waste 1 second without Krishna Nam, Krishna Katha. He always absorbed with Krishna Nam and Krishna Katha. This is Abharta Kalatam. Virakti and detached from all the material things. Kandra Bhartakatam Virakti, Manasunnata, not hankering for any name, fame, reputation. Kandra Bhartakatam Virakti is Manasunnata. Asha Bandhu is only one hope when I will attain the abode of Lord. Asa means hope. Asabandhu. Samutkantha. Samutkantha means always eagerness. When I will receive the sprinkled mercy of Srimati Radhika. Samutkantha. Samutkantha. And Namo Gane Sada Ruchi. So much taste, Ruchi. Nam Gan, Krishna's Rup Gun Lila, always observe. How to chant Lord's holy name, glorify pastimes of Krishna. Nama Gane Sadar. Asuktikta the Gunanukhane. And he has deep attachment, glorify pastimes of Krishna. Khandra Bhartakarutam, Bhakti Mana, Sunnata, Asabandhu, Samutkantha, Nama Gane Sadar. Asuktikta the Gunanuk, Pritita the Basati Stali. Pritita Basistani, he has so much love and affection. The pastime places of Krishna. Krishna last time. Where Krishna and Gopis, Srimati Radhika, where they performed Ras Leela. Very eager to go that place. You understand? As Radha Kunda, Sam Kunda, Giriraj, Govardhan, Vrindavan. You are going Vrindavan or not? Not going. Pritita Vasatiste, Uttarda Surajat Bhavan Kurejan. In the sprout of Bhav, that is called Rati. So these are the 9 external symptoms of Jata Rati sadhak. Or Ajata Rati sadhak means that sadhak, Rati not manifested in his heart. But he is doing bhajan and sadhana. It is called Ajata Rati sadhak. So now coming in this way, the Bhajan Rasya Grantha can study Jatarati Sadhak and Ajatarati Sadhak. Jatarati Sadhak also and 3 external symptoms also. And what are the 3 external symptoms? Internal symptoms. What is that? And Bhagavad Prapti Abhilasa. Bhagavad Prapti Abhilasa is only one asa, Abhilasa, hope, how to attain the abode of Lord. Attain to Lord, not other things. Or Sohridda Abhilasa is only one hope, Abhilasa desire, how to make friendship with the devotee of Krishna and or Srimati Radhika. And that is called Sohridda Bhav, Ruddha Abhilasa. Then, or third, or Bhagavad Prapti Abhilasa, Sohridda Abhilasa, or another
तीन अभिलाषा रहता है, and that's called how to in the place of Devan Guru Radha and Krishna, they perform sweet lila. So three desires in his heart. So now coming in this way. Jaturati sadhak and Ajaturati sadhak both can read this book. So Bhaktivinoda Thakur explained, Rati yet not manifest one's heart. You have to associate with sadhu, listen Hari Katha. So first this saying, Adu Shraddha. That is called Nishanta Lila, a Nishanta Bhajan, Shraddha. What I told Nishanta Bhajan. Nishanta means the end of night. Nisa, Anta, Nishanta. Nisa means night. Anta means end. That means end of night. And another meaning, Nishanta Bhajan means that when we'll get the association with sadhu, then slowly all our material desire will be diminished. जितने साधु संग करते रहेंगे उतना ही परिमाण संसार की वासना धीरे धीरे कम होती जाए, डिमिनिशिंग होती जाए, संसार अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह symptom है, because one who practice devotional service to Lord, there are automatically three symptoms. भक्ति परेशान भुव वृत्ति अन्यत्र चैषत्री का एक काल. Bhakti means the transcendental habitual move towards Krishna. Bhakti. Second, Paresa Anubhav. First, you have realization. You come towards Krishna. Bhakti Parisana Bhava. Vrakti Annatra. And we detach from the material sense gratification. Bhakti Parisana Bhava. Vrakti Annatra. Chaisatrika Eka Kala. Chaisatrika Eka Kala means at a time, same time, simultaneously. Three things will come. Krishna सेवा वृत्ति आएगा और दूसरी रियलाइजेशन भी आएगा और साथ ही साथ विरक्ति आ जाएगी. विरक्ति किस में आएगा? कृष्ण इतर वस्तु में. इतर वस्तु समझते हो सब है? कृष्ण so these are three symptoms. यथा प्रपद्य मानस तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति अनुघासनम. If you take the food, every stuff when you're eating, then automatically what? You will slowly hungerness will diminish. How much you eat? So automatically in the same way, bhakti, that means one who practices devotional service to Lord. There are three symptoms will come. Bhakti, parisana bhava, vrakti, annatra, chaisatrika, ekokar. Tushti, pushti, hit, tushti, pushti, or put nivritti. And if you eat, then you are satisfied. And you will become also healthy. And if you eat and proper prasadam, then you will be healthy or not. And so tushti pushti, hit or khud nivritti. So then your hunger is will, and you will satisfy no more. In the same way, if you practice devotional service to Lord Suddha Bhakti, then you will be very happy. They come. But in this material world, this example not proper also. Why?
But if you eat something, then only certain time will be satisfied. Then again you will hungerness will come. Coming or not? After 6 hours, again you hungry. But bhakti and consciousness, if you practice bhakti more and more, every second or more and more, and eagerness will come. More and more eagerness will come to then serve to Krishna. समझ में आया क्या बोला? क्या बोला बताओ? अरे हिंदी तो बोलो, क्या बोला क्या? हाँ समझ में आया। भक्ति ऐसे वस्तु है जितने भी करोगे उतना ही आपके और भी उत्कंठा जाएगा। भक्ति देवी जितने भक्ति करो, भक्ति माने क्या है? सेवा। भक्ति मीन्स साफी चलना, श्रवण, श्रवणाको भक्ति। You are listening Hari Katha, this is also bhakti. If bhakti manifests in your, then eagerness will come. I will listen more and more Hari Katha. And you will never satisfy. Because this is nature of the bhakti. समझ में आ रहा है? नींद तो आ रही है ना? Bhakti, this is the nature of bhakti. If you hear bhakti means is what? Only remember, bhakti means क्या बोला? सेवा. You are right. उत्तर दिया अच्छा है. भक्ति मीन्स सेवा. जितना सेवा करोगे उतना ही और भी सेवा करने की उत्कंठा चाहत है. ये भक्ति के लिए नहीं. और वो कभी ये नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, और भी और मोर 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 मोर. इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इफ वी ईट देन योर स्टमक एंड फुल. Then we can take more, but no. But take more. They have no place to take Hajmala. Hajmala, understand? Just think tablet. But no. But bhakti is what? More and more. Because it turns in it. But this is the nature of bhakti. कोई भक्ति करे, शुद्धा भक्ति किसके हृदय में उदित हो, ये भी लक्षण दिखाई पड़ेगा. अभी थोड़ा कथा बोलने के बाद, सुनने के बाद टायर्ड हो जाते हो. बोलने वाला टायर्ड नहीं होता, सुनने वाला टायर्ड हो जाता है. बात सही है कि नहीं? बोलने वाला इतना टायर्ड नहीं होता है. जो बैठे हैं वो बैठे बैठे टायर्ड हो जाते हैं. कितने तब बोलोगे? भक्ति नहीं हुआ ना. यदि भक्ति हो, शुद्धा भक्ति हो, तो ट्रांसेंडेंटल थिंग्स आएगा ना. कोई वस्तु में रुचि जब आ जाता है, इसलिए कहते विश्वनाथ जी मांडन कथा में कितने कॉन्सेंट्रेशन होता है, कितने में लगाते हो आप बताओ. जो आप बता रहे हो, मांडन वस्तु जो है उसमें लिमिट नहीं होता है. वो इतना होता है और भी समय, वो कुछ समय तक हो जाता है, फिर और भी होता है. आज समझिए, यदि है असत कथा घूमे तो चिया होता था, आज यदि है कृष्ण कथा वज्र जन पड़े माता घूमे झूमे तल्ला सो बालिश. मांडन कथा में कितना आनंद होता है, बक बक करते रहते हैं. कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कितने किया आप बताओ. जो आप बोल रहे हो टायर्डनेस होता है, ठीक है, मांडन शरीर है, किंतु विषय कथा में, मांडन कथा में टायर्डनेस कम होता है.
तो कुछ समय तो होता है, फिर आनंद आता है। आज नहीं, कृष्ण कथा श्रवण करके बैठो, नींद आ जाए। और विषय कथा हो, माने मानन कथा हो, बिल्कुल नींद आएगी नहीं। आएगी कितना समय हिलते करा। यदि है असत कथा घूमे तो चियाओ तथा घूमे जो में यदि है कृष्ण कथा बज्ज जनो पड़ी माथा घूमे झुमे तल्ला 142। यदि है कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा हो ना, सिर पर जैसे मानो थंडर बोल रहा है, बोले महाराज जल्दी जल्दी खत्म कर दो, टाइम हो गया। और यहां से कथा खत्म हो गया, फिर जाकर के मांडन कथा में कितने समय लगा देगा, विचार करो। इसलिए हम नहीं करें, शास्त्र करें। यदि है असत कथा घूमिते चियावत था सुनीते बाड़े कथरती। और यदि है कृष्ण कथा बज्र जनो पड़े माथा घूमे झुमे तल्ला 142। कृष्ण कथा हो जाए नींद आई। भक्ति यदि शुद्ध भक्ति हो है, वो उतना ही आनंद आएगा कथा सुने। सुखदेव गोस्वामी पाथ 7 days 7 nights हरि कथा बोला कि नहीं बोला है? विश्राम किया था, सोया था, खाया था, पिया था, नहीं कुछ है। परीक्षित महाराज जी उसी प्रकार है, एकांत चित्त में बैठे है। तस्मिन महान मुखरता मधुबी चरित्र श्रीमद् भागवत है। सुखदेव गोस्वामी पाद मानो कहने लगे, ये परीक्षित है, थोड़ा पानी पी लो है? नहीं तो बोला, तथापि हम कर रहे हैं, तुम बहुत समय तक बैठे हुए है, थोड़ा पानी पी लो है, मैं भूख लग रही। परीक्षित महाराज ने क्या बोले, ये श्लोक पढ़ो। तस्मिन महान मुखरिता मधुवित चरित्र है। हे प्रभु है, हे ब्राह्मण है, आप जो कृष्ण की जो कथा जो श्रवण करा रहे हैं, मधुवित चरित्र है, माने कृष्ण कथा जो श्रवण करा रहे, और उस कथा सुन करके मेरे सारा भूख प्यास चला गया और आनंद आ रहे हैं आपकी कथा में ध्यान। इसलिए कहता है तस्मिन महान मुखरितात मधुवित चरित्र विश्व शेष उस कथा सुन के मेरे भूख प्यास तृष्णा और निद्रा सब चला है। आप कथा सुनाइए, बस कथा सुनाइए। हम लोग उल्टा करते हैं, कहते गुरुदेव आपका टायर्ड हो गया, आप सोए नहीं, आप सो जाओ। कुछ बात को लोग ऐसे करते रहते, कितना ममता है। बोले गुरुदेव के प्रति कितना ममता दिखाते, कथा सुनना नहीं है। बोले आप बहुत समय तक कथा बोल दिया, इसलिए आप सो जाओ। हम तुम क्या करोगे, विषय कथा करोगे। मूर्ख सब। अरे हरि कथा श्रवण करो, ये तो आज समझ श्रवण हरि कथा। देखो परीक्षित महाराज यही तो कह रहे हैं, इस श्लोक के ठीक से पढ़ो, एक एक अर्थ के समझने के प्रयास करो है। आज जब तक शब्द के हम अर्थ नहीं जानते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। श्लोक पढ़ो और श्लोक के अर्थ भी समझो। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस श्लोक को आपको पढ़ना चाहिए। तस्मिन् महान मुखरिता मधुवित चरित्र
अहो आपकी अमृत, आपकी मुखार बिंद से जो अमृत निकल रहे हैं, और इसको पान करके, माने आपकी कथा अमृता, अब जो कथा हुआ है, पान करके मेरा सब क्या हो गया, भूख प्यास है चला, निद्रा भी चला गया। क्योंकि समुद्र क्या बोले, नदी के जलधार के वहां थी आपकी मुखारबिंद से हरि कथा। हम लोग के श्रवण के इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, श्रवण में रुचि हो जाए तब। रुचि किसको कहा जाता है, सुना अच्छी तरह से, है रोचनात् इति रुचि। कोई वस्तु में रुचि हो ना, उसके खाने में आनंद होता है। जब तक रुचि नहीं हो तो वो वस्तु हजार अनेक प्रकार की मिष्टान्न स्वादिष्ट वस्तु दिया जाए, उसको अच्छा नहीं लगेगा, समझ जाए। इसलिए बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी पाद भी बोल रहे, लिख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो, 2-4 दिन, शायद 2 दिन अब 3 दिन खाया ही नहीं है, उसके पास कोई भी भोज्य वस्तु आ जाए, भोजन की वस्तु आ जाए, वो पूछेंगे नहीं कौन रसोई बनाया, उसमें नमक है कि कम है, ज्यादा है, जैसे वस्तु मिल गया वो भोजन करते रहे, कि उसकी भूख है, और उसमें वही वस्तु उसके स्वादिष्ट लगता है। जब हमारी भूख नहीं है, खुदा मंदा है, यू अंडरस्टैंड, नो एपिटाइट, और अनेक प्रकार की भोज्य वस्तु भी आ जाए, तथापि वो प्रश्न आएगा, ये किसने बनाया, इसमें नमक ज्यादा हो गई, इसमें नमक कम हो गया, हम कभी प्रश्न करते हैं, मतलब हमारी भूख तीव्रता नहीं हुई। तीव्रता समझ क्या, आई एम नॉट हंग्री। जब खुदा भूख लग जाता है, तब वो जहां पर वस्तु आ जाए आंख बंद कर, और जब भूख नहीं है, मंद खुदा में क्या होता है, वो प्रश्न आता है, एक किसने बनाया, ठाकुर जी की भोग लगाया, किसने लगाया, ब्राह्मण लगाया कि अब्राह्मण लगाया, कौन सा ठाकुर जी को लगाया, आज समझो, हनुमान जी के लगाया कि गणेश जी के लगाया, ना दुर्गा जी को लगाया, कृष्ण के लगाया, अनेक प्रश्न आए। जब भोग नहीं लगता है तो अनेक प्रश्न आ जाएगा। और जब प्रबल भूख तीव्र भूख लग रहे हैं, वस्तु आ गया, आंख बंद करके भोजन कर लेते हैं। तात्पर्य क्या है, रागानुगा भक्ति और एक वैदिक भक्ति। रागानुगा भक्ति में यही लक्षण दिखा पड़ेगा, और रुचि शुरू हो जाता है। वैदिक भक्ति श्रद्धा से लेकर के धीरे धीरे वो क्रम में चलता रहता है। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनुरक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये सीक्वेंस दिखाया। और रागानुगा भक्ति में, ब्रज रागानुगा भक्ति में क्या दिखा रहे हैं, श्रद्धा से लेकर के वो पहुंच जाते हैं साधु संग, फिर निष्ठा से लेकर के रुचि में पहुंच जाता है। थोड़ा गैलपिंग होता है, गैलपिंग सुनते हो, जैसे हॉर्स जंप, but here that means that not he is following all the rules. He follows the rules, but going very quickly. Give an example. If you go to the upstairs, छत पर आपको जाना है, मकान है, 5 मंजिल मकान में जाने के लिए 2 रास्ता है। एक सीढ़ी में जाओ, चढ़ करके, घूम करके आप ऊपर पहुंच जाओगे, समझ में आ रहा है। और दूसरी एक है लिफ्ट है, आप कौन सा जाना चाहते हो,
तो आप एक मंजिल 5 मंजिल जाने के लिए क्या बोले स्टेयर्स दिखाया गया, उसमें भी जा सकते हो, उसमें हर मंजिल को आप टच करके जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। और जो लिफ्ट में भी जा रहे हो वो हर मंजिल के वो भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 है। कहने की तात्पर्य है विधि मार्ग भी और राग मार्ग सभी भक्ति के अंगों को पालन करते हुए जा रहे हैं, किंतु विधि मार्ग में उसके समय लगता है और राग मार्ग में वो रतजनी स्वाधीनता रत्नता ने राग मार्गे कराना प्रवेश। यू कैन नॉट जम्प इफ यू हैव नो पास्ट इंप्रेशन संस्कार सीक्वेंस। और राग मार्ग में ऑल्सो श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया मंत्र निष्ठा रुचि आसक्ति भाव एंड प्रेम। बट राग मार्ग little bit very quick. Just I gave an example. Marga sadhak, and his rag is very quick. He attained a ruchi. So for this regard, raganuga sadhak by rag bhakti. One name is also ruchi mula bhakti. What is it? Ruchi mula bhakti. Ruchi means taste. Shraddha to ruchi very quick is coming. Ruchi means a taste will come. You have to eagerness to listen Krishna Katha. Eagerness half to Krishna. Taste. Adhuniki sanskar. So that means here two sanskar. One is called Adhuniki sanskar, or another is called Praktaniki sanskar. Praktaniki sanskar, first impression, very easy to bring to Shraddha to Ruchi. And so now coming the two kinds of our bhakti. One is called Vaidhi bhakti, called Rag bhakti. But we listen Krishna Katha, then the sanskar will come. This life listen Hari Katha, the sanskar comes. And taste will come out. Ruchi will come. So now coming the Raganaga bhakti. Bhayat par kya bhayat padika bhakti. What is it? Bhay utpadika. Because Shastra gives many injunctions. If you not follow this rule, you have to go hell. Example, if you not observe Ekadashi, Shastra saying, you go to hell. So for this regard, you fear from the hell, नरक जाने के भय से, you observe एकादशी. तो you नरक जाने के भय से एकादशी को ही पालन कर रहे हैं. एकादशी पालन कर भक्ति है कि नहीं? किंतु ये भक्ति क्या हो गया? भयोत्पादी का भक्ति. शास्त्र में इंजेक्शन कर दिया है. इफ यू नॉट भक्ति एकादशी पापन ऑब्जर्व एकादशी और another person he observes ekadashi, performs ekadashi. Why? For the pleasure of Krishna. कृष्ण सुख के लिए मैं एकादशी कर रहा हूं. लोग ये चिंतन नहीं आ रहे. And this thought is not coming in my heart. I will go hell or not. Nothing. All my activities will pleasure for Krishna. क्या क्या नाम बताए? शास्त्र शासन में and all the scriptures give the injunction you have to do. Bhayotpadika bhakti. Why we are observed called माधुर्यमय भक्ति भी कहा जाता है. और क्या बताया? रुचि मूला भक्ति कहा जाता है. रुचि टेस्ट रुचि मूला भक्ति.
And concession, those health is not good. If your health is not good, body is not good. If you are sick, then give some. Understand these things. शरीर यदि ठीक नहीं हो, आप निर्जला नहीं करो, किंतु एकादशी करना पड़ेगा। उस दिन आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार उसके लिए दिया गया जिसके तबीयत ठीक नहीं, कंसेशन कार्ड दे दी। किंतु कलियुग सभी हम कंसेशन कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं। Some sampradayas, they are not following this rule. This is completely wrong. And most of the people, they are and follow. Okay, very nice, no need to austerity. Or no. You have to follow. चैतन्य महापुरुष स्वयं किया नियम दिया, तो एकादशी पालन करो। चलो, ये भजन रस ग्रंथ की कथा जो हम वर्णन कर रहे हैं, ये दो प्रकार के साधक कर सकते हैं। कम हो जाता है। निशा माने अंधकार। निशा शब्द का अर्थ होता है क्या? रात्रि, अंधकार। अंधकार में भूत प्रेत पिशाच, अंधकार में हम नींद सोना चाहते हैं, ये भी तमोगुण आ जाता है। सोना क्या? अंधकार। अंधकार में हम सोना चाहते हैं, क्यों? अच्छा नींद आई, बस इधर जो पड़ा हुआ है। ये अंधकार कैसे दूर होगा? न साधु संग में, हरि कथा श्रवण। जब तक हम हरि कथा श्रवण नहीं करें साधु संग में, ये अंधकार दूर नहीं होगा। बात ही सही है क्या? सत्संग हम साधु संग प्राप्त होता है। जिस जीवन में आपके साधु संग हो रहा है, वो समझना चाहिए अति अल्प समय में ही आप भगवान की प्राप्ति कर लो। एक दो जन्म चार जन्म में कोई विशेष कोई बात नहीं है। आज जब हनुमान जी जब लंका में पहुंचे, विभीषण रहता है, देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, दांत क्या करता है? जीभ को काट देते हैं। कोई कोई जीभ काट देते हैं ना, जीभ काट जाता है। किंतु जीवा बहुत कोमल है और दांत सख्त है। तो उसी प्रकार उदाहरण दे रहे, विभीषण उदाहरण दे रहे, ये मैं लंका में तो रह रहा हूं, ये शत्रु के बीच में रह नाम जप करता, नाम घर में रखा है। रावण और इंद्रजीत दोनों आ गए, बाप बेटा है। आज समझिए, आकर रावण विभीषण, तो मेरे शत्रु के नाम लेते हो और शत्रु के नाम घर में रखते हो। बोले भैया कहाँ? रावण बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, चलो। दुष्ट व्यक्ति के ऐसे समझा दिया, वो चला गया, आनंद हो गया। चलो चलो विभीषण, मेरा नाम और मंदोदरी के नाम जब करते, बहुत अच्छा मिलेगा मुझे, ये मेरा विश्वास है। तात्पर्य क्या है? हनुमान साधु है ना, भगत भक्त है, राम भक्त है। प्रथम भक्ति क्या बताया हनुमान, रामायण में क्या बताया? संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन करे संगा। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बाबू ही बोल रहे, आधु साधु संग, प्रभु साधु संग। इस साधु संग में क्या था? कथा सुन करके मेरा भगवान के प्रति श्रद्धा जगते है। श्रद्धा कहां से आएगी? हरि कथा श्रवण से। हरि कथा कौन बोलेगा? साधु बोलेगा, साधु नहीं बोलेगा खरीदो वो खरीदो। है आज बात ऐसे ही है कि नहीं? एडवाइस देते हैं ना,
रहता है, क्या बोले, स्क्रीन लगा रहता है? उसमें क्या राम कथा बोलते हैं, कृष्ण कथा बोलते हैं? उसे सब संसार की कथा बोलते हैं, उसकी श्रद्धा बढ़ाने की, कि वो संसारी है, संसारी। और लोग जैसे एडवर्टाइज देता है विषय के ऊपर के लिए, है उसी प्रकार साधु भगवत कथा श्रवण करा करके उसे अट्रैक्शन करा के एडवर्टाइज देना पड़ता है? अब बात ऐसे ही है कि नहीं है? आप कलिकाल है ना, है? कलिकाल में सबको क्या क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइज करना पड़ा है? आज में यहाँ तो कि क्या बोले, उसमें लिख रहे सनातन की विश्वनाथ, केवल फैक्ट्री खोलने से काम नहीं चलेगा, मेडिसिन के फैक्ट्री खोलने में काम नहीं चलेगा, और साथ ही साथ उसके डॉक्टर के पास जाकर के प्रमोट करना पड़ता है। या हमारी कंपनी में ये मेडिसिन आप पहले आप एक डॉक्टर पेशेंट के लिए, पेशेंट तो तब आएगा हमारे दुकान पर खरीदने के लिए। बात इसी के ना, दुकान खोलने से थोड़ी काम चलता है, दुकान के साथ होते। ठीक उसी प्रकार करें, बोले है? देखो कैसे हम नहीं करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती इसी टीका में निवृत्तर से इस श्लोक में एडवर्टाइज करना पड़ता है। कलिकाल जब तक लोगों की एडवर्टाइज नहीं किया जाए, उनके ऊपर इंप्रेस नहीं करा जाए, वो कथा कहाँ सुनने आएगी? है कि नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। आपके मंदिर है तब लोग आता है? नहीं केवल मंदिर खोल करके बैठे जाओ, नहीं होगा। उसके क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है? जैसे संसारिक लोग जैसे प्रचार मतलब की है, यही है, लोगों के पास दिखाना पड़ता है। बात ऐसी ना मेडिसिन देना पड़ता, लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए लोग कर्मी के पास चले जाते हैं, ज्ञानी के पास जाते हैं, जोगी के पास जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं लोग। शुद्ध भक्ति के भी आपको बद्धजीव क्या करते हैं, जहां पर अपने दैहिक सुख और फैसिलिटी मिलता है वहां पर चले जाते हैं। चलो हमारे पास आ जाओ, तुम्हें एकादशी करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाओ पियो मस्त रहो, केवल पड़े रहो यहाँ पर। लोग आ जाता है वहां पर बहुत फैसिलिटी मिलता है। गौड़ी मठ में फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, किंतु फैसिलिटी कलिजुग के लोग जितने फैसिलिटी दोगे उतना ही वहां पर लोग आएंगे। आज समझ रहे? फैसिलिटी नहीं तो कोई थोड़ी आएगा। बैठने के लिए अच्छा आसन होनी चाहिए, कि सब लोग कंपेयर करते हैं, उस मंदिर में मुझे क्या फैसिलिटी दिया, क्या फैसिलिटी दिया, लोग कंपेयर करते हैं। वो कंपेयर नहीं करते जो भक्ति हमें इधर अधिक मिल रहा है उधर कम मिल रहा है, वो नहीं देखते, वो देखते भौतिक सुख देखना चाहते। बात ऐसे ही कि नहीं? सच बोलो, सच बोलो तो मारे लट्ठा, बोले ये तो गलत बोलो, लोग पिटाई करेंगे। झूठ बोलो तो मिले प्यार, और सच बोलो तो मारे लट्ठा। समझ में आया? तो नाम कमी है, कली युग है, देना फैसिलिटी देना पड़ता है। अब बात ऐसे ही है कि नहीं? कोई कहते हैं महाराज मेरे कमर में दर्द है, आप यहाँ पर चेयर नहीं है, बैठने के नहीं है, कहाँ से आ जाएंगे? चेयर अच्छे लगा दो। मठ मंदिर के प्रसारण करने के लिए प्रमोट करने की जरूरत है कि नहीं? अच्छा कीर्तनिया होना चाहिए। हम भागवत करते हैं ना, लोग आते हैं किस लिए आते हैं? कथा सुनने के लिए तो कम लोग आते हैं,
ज्यादा लोग किस लिए आते हैं? कीर्तन हो, वहां अच्छा प्रसाद भी अच्छी हो, है अच्छा नहीं? सबसे बड़ी क्या है? प्रसाद अच्छा होनी चाहिए, है? अब आधे सही है कि नहीं? लोग देखते हैं यहाँ पर प्रसाद ठीक है तो मथुरा में हरिकथा के समय 5-10 बैठे रहे, और जब प्रसाद के समय बिल्कुल हमारे टेम्पल कंप्लीटली फुल, 300-400 पीपल आए, कहाँ से आए? सब देवता लोग सब आ गए। सभी जगह, अरे सब जगह तो एक ही है, सब तो एक ही ब्रह्मांड में रह रहे हैं, दूसरे ब्रह्मांड तो नहीं रह रहे, केवल स्थान बता रहे हो, है? अच्छा बातें सही है कि नहीं? वो भाग्यवान जीव है। प्रसाद में तो प्रसाद ही आनंद है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित है, लीला कथा श्रवण करो, है? तत्व सुन करके क्या होता है? चित्त दृढ़ हो जाता है? और लीला कथा श्रवण के बाद हृदय में आनंद होता है? तत्व हमारे क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म बना देते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। जितने भी तत्व कथा में तुम्हारे दृढ़ता होगी, दृढ़ता होगी, स्ट्रांग होगा, उतना ही लीला रूपी, लीला कथा रूपी महा सौध वो बनेगा। सौध समझते कि नहीं? मंजिल, ये तत्व कथा मानो फाउंडेशन है, और लीला भगवत लीला कथा क्या है? ये विशाल मंजिल है। एक विशाल बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इंजीनियर क्या देखते हैं इसको? फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और फाउंडेशन ठीक नहीं हुआ, स्ट्रांग नहीं हुआ, है? अब वही करते है। ठीक उसी प्रकार भक्ति राज्य में उसी प्रकार है, जिसके जितनी परिमाण तत्व सिद्धांत में दृढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और उतना ही वो, और साथ ही साथ लीला कथा भी श्रवण होनी चाहिए। केवल तत्व सिद्धांत में कभी कभी ज्ञान मार्ग में चले जाते हो, है? और केवल लीला कथा में चले जाए, और क्या बोलते हैं, ये अध्याय में है भक्ति विनोद ठाकुर, देखो उसमें एक एक करना पड़ेगा। जिसे कहते हैं सिद्धांत बोले चित्त लेते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यदि मन के यदि वास्तव रूप में कृष्ण की लीला की अष्टकन लीला में प्रवेश कराना है, समझ में आ रहा है, तब क्या करो? जीव, प्रकृति, काल और कर्म, याद रखना। काल मैंने टाइम, नियंता ईश्वर, जीव लिविंग एंटिटीज ईश्वर जीव, प्रकृति नेचर है ईश्वर जीव प्रकृति, काल टाइम ईश्वर जीव प्रकृति काल, और कर्म। 5 तत्व का आपको आज भली भांति कर्म की गति क्या है, कहाँ, ये सबको जानना पड़ेगा। सुख दुख आती है, क्यों आता है? सब हमारे कर्मों के ऊपर आ रहे हैं। जैसे जैसे मैंने कर्म किया, इसको मैं दुख दिया तो दुख कहीं ना कहीं आएगा, वो हमारे पास, वो कष्ट हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, therefore every action is equal and opposite reaction। इससे बचना क्या है, ये हमें इसके सोचना पड़ेगा। किंतु एक रोग निवारण हो जाता है, दूसरी रोग आ जाता है। हेड माने क्या बोले, सिर के दर्द के लिए आपको मेडिसिन दिया गया, सिर के दर्द चला जाता है, किंतु पेट के दर्द आ जाता है।
आता है कि नहीं आता है? रोकने के लिए तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी पहली भौतिक विचार के हम सुने है, इसलिए सारे साइंटिस्ट, कोई मेडिकल साइंटिस्ट हो अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री, जो जितने भी साइंटिस्ट, सभी की एक ही है, क्योंकि इस जगत में प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम के आप तोड़ नहीं सकते हो है? प्रकृति के नियम तोड़ नहीं सकते। प्रकृति तो काम करते रहेगा। प्रकृति कैसे काम करते? माया अध्यक्ष न प्रकृति सोचे सचराचरम हेतु अनेन कौन्त्य जगत भी परिवर्तन। स्पिरिचुअल साइंस वही फिर उसके कार्य है। स्पिरिचुअल साइंस क्या बोल रहे हैं? सॉल्व कैसे हो है? और जो हो गया हो गया। तुमने जो पूर्वजन्म में जो पाप किया और पाप नहीं हो और उसे पाप भोगना न पड़े है? उसके चलो हरिनाम करो है? एक नामाभास हो जाए, क्या हो जाए? ना हो जाए तो सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो। कंडीशन फिर दोबारा नहीं कर, पाप नहीं करना। जगाई माधाई बोले आ, क्योंकि भगवत धाम में रोग शोक दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। क्यों? वहां पर जड़ शरीर नहीं है। इस संसार में हमारे जड़ शरीर है, इस जड़ शरीर में कष्ट आता है। और उस जगत में शरीर क्या है? चिन्मय शरीर, सच्चिदानंद शरीर। इसलिए कहते हैं बैक टू गॉड है। भगवत राज्य में चलो, यही तो कार्य है। देखो और जाम में और अध्याय में 8 अध्याय है ना, 8 जाम लिखा है और अष्ट जाम है, अष्ट जाम और 8 श्लोक भी हुआ, 6 अष्टक 8 श्लोक है। महाप्रभु जो अपने मुखारबिंद से 8 श्लोक जो उन्होंने बताया। और लीला आदि कैसे है, जिसे कहा जाता है कुंज भंग लीला कहा जाता है। क्या लीला कहा जाता है? कुंज भंग, अर्थात राधा कृष्ण दोनों निद्रा त्याग दे करके है, कैसे कृष्ण नंदगांव में पहुंच रहे हैं और कैसे है, क्या करोगे? निशांत लीला के याद करो। किस प्रकार राधा और कृष्ण दोनों जो है निवृत्त और निकुंज है स्थान पर कैसे विश्राम कर रहे हैं। दोनों की इतने सुंदर अंग कांतिक जो है वह स्थान कंप्लीटली क्या हो गया? उजाला हो गया। एक मानो नील उजाला हो गया और साथ ही साथ और क्या है? गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। उसके द्वारा दोनों नीलाभ और तप्त कांच दोनों ऐसे ऐसे सुंदर रूप धारण किया है। हाँ, कितना खानी हेरिया कदम्ब मूले। अंग कांति कैसे है? डिफरेंट द ब्यूटी ऑफ ब्लू सफायर जेम्स है। इंद्र नीलजिनी कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मूले। इतने सुंदर कृष्ण के रूप है। दोनों ऐसे जब उस कक्ष में जब शयन कर रहे हैं, इतना सुंदर ये मधुर है। उस कक्ष के किस प्रकार सजाया गया है। एक अगला के चिंतन करना पड़ता है। जितने भजन करते, नाम भजन करते करते उसके चिंतन होता है। वो भी स्वाभाविक रूप में आए है, आर्टिफिशियल नहीं है। राधा सौदामिनी समझते क्या? सौदामिनी बिजली, जिस प्रकार नील बादल के काले बादल के जैसे है बिजली धोकरे रहते हैं, उसी प्रकार है। इतना सुंदर रूप है और सखियों के द्वारा पहली से ही वो कक्ष सुंदर रूप में सजा करके रखा है।
है। जैसे क्या बोले, जलदान, जलपात्र रखा गया, क्योंकि राधा गोविंद जब उठेंगे क्या करेंगे, पानी पिएंगे। प्रातः काल में उठ करके नींद टूटने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए, पानी पीते हैं कि नहीं, पीते नहीं। प्रातः काल पान करो, देखो पेट साफ रहे, पेट में बीमारी नहीं होगा। प्रातः काल में उठ करके पानी पियो, 80% बीमारी तुम्हारा अपने आप चला जाएगा। जितने प्रकार कठिन व्याधि हो, दुरारोग्य हो, प्रातः काल में उठ करके पानी में थोड़ा सा गुनगुना पानी, ज्यादा नहीं है और ज्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना। राधा जी की जितने प्रकार की प्रसाधन की वस्तु जो है, प्रसाधन की वस्तु समझते कि नहीं, क्या है, उनके अलंकार वस्त्र आदि सब सजा करके रखा है। ऐसे कुंज नहीं है जिसके लीला आदि की उद्दीपन है, उस कुंज के इतने सुंदर रूप में सजाया गया है। अनेक बड़ा मणि माणिक आदि के द्वारा कुंज आदि सजे हुए, ऐसे लता पता है। हाँ सुना, यदि तुम्हारे मन यदि विचलित हो, फिर कुछ समय के लिए बंद कर दो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर सुनो, चित्त के एकाग्र करो। एकाग्र करने के यही स्थान है, कथा को श्रवण करो किस प्रकार है। आज इसलिए उनकी वो है विस्तार के सुंदर रूप में सजाया गया फूलों के द्वारा। वो फूल कोई साधारण फूल नहीं, अनेक प्रकार के सुगंधि युक्त पुष्प जो है, जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते। जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये किस प्रकार राधा के कुंज में जहां पर राधा जी शयन करती है, उसके कितने प्रकार कैसे सजाया गया अत्यंत। मक्खन भी छोड़ दीजिए, बोले दूध की फेन, दुग्ध फेनिल, foam of the milk. When you're milking the cow, then foam comes. Have you seen or not? बोले उसी प्रकार इन लोग के, तो ऐसे रखने के लिए भी तो कि तुमरा कुंज सजा दो, असिलो असीते पारे वहां प्राण प्रियतम। राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही थी, इतने समय समाचार मिली ये गोविंद आ रहे। देखो उसी विरह में श्रीमती राधिका अपने सारे सखियों को बुलाया और बुला करके सुंदर रूप में कुंज सजाया। राधा जी के निर्देशना अकॉर्डिंग द गाइडेंस ऑफ श्रीमती राधिका, ललिता विशाखा और सखी वो लोग कैसे कुंज को सजा रहे। ठीक है, तुमरा कुंज सजा गो असीलो असीते पारे प्राण प्रियतम। राधा जी का हमारे प्राण प्रियतम गोविंद तलवार नहीं रह सकते। जिस दिन हमारे हृदय से ये प्राकृत भावना दूर हो जाएगा और अप्राकृत भावना आएगा, तब हम समझ पाएंगे। इसलिए कहा राधा गोविंद की ये तल्प बने, उसके विषय में सजाया गया सुंदर आदि, इतने मखमल और सॉफ्ट कोमल वस्त्र आदि के जैसे कहते हैं, इसे कहते हैं फुलेर बिछाना, फूलों के द्वारा, पंखुड़ियों के द्वारा तैयार कर, वो भी आर्ट होता है ये सब ललिता देवी शिक्षा देगी। ललिता विशाखा ये समझता है, एक एक सखी जो है आपको ट्रेनिंग कराएगी। अभी आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आज समझिए। और सब ये ललिता विशाखा सब सिखाएंगे, इसलिए कह रहे हैं करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवे
श्री राधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे। ऐसे ऐसे है, क्योंकि ललिता देवी समस्त सखियों में श्रेष्ठ है, हाई कमांडर, चीफ कमांडर जिसको कहा जाता है। ललिता देवी के कहा जाता है चीफ कमांडर। बैटल कॉन्फिडेंस। ओके नाउ अल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवे श्री राधिका पदे काले में लाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे। without the recommendation of Sarup Damodar. Yes, Sarup Damodar. Mahapurusha Sarup Damodar. Very, very important person. Without recommendation of Sarup Damodar, Mahaprabhu will not listen and any song, nothing. If you want to say anything, but first you go to Sarup Damodar. And in the same way, Radha Krishna Leela, Lalita Devi. Chief Commander. Lalita Devi she is called Chief Commander. Lalita Devi is not it. So he is saying, Pallodasi Kari Lalita Sundari Amare Loya Kabe Shri Radhika Pade काले में लाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे हमारे लोया कबे। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी सप्तम गोस्वामी है कमल मंजरी अरे सही when Lalita Devi when Lalita Devi she will give instruction. Commandment. Lalita Devi she will be. Lalita Devi she is very soft hearted also. Externally she is very hard. But her internal mood is very soft. So for regard Rupa Goswami Pad explained. Jang kampi brajakuli visavanu jai. Just your desire will come. Yeah, I will become the maid servant of Srimati Radhika. Jang kam opi brajakule visavanu jaya. Taddat tad gharet tenu. इस कथा सुनते ही ललिता देवी प्रसन्न हो जाते और उस सखी को पकड़ करके लाते। ओ तुम राधा जी की दासी बनना चाहती हो, आओ। आज समझिए, आओ। और साथ ही साथ राधा जी के पास ले जाएंगे। राधा जी की कहेगी राधे तुम्हारी इसको तुम पार्लोदासी के रूप में स्वीकार कर लो। बोलो वृंदावन गया इधर कार्य नहीं इसमें ललिता अष्टक पढ़ो अच्छी तरफ से प्रभु गोस्वामी पाद लिखा कितना सुंदर। ललिता देवी के बिना कोई काम नहीं होगा। अंडरस्टैंड ललिता देवी तो saying पल्लोदसी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि श्री राधिका पदे काले मिलाई भी आज्ञा सेवा समर्पित। कितना सुंदर भाव। मंजरी जो सखियां 5 प्रकार की सखियां होती है उसमें जो सखियां जो है राधा जी में निष्ठा रखने वाले राधा निष्ठा वाली उसी कहते हैं मंजरियां कहा जाता है। 3 प्रकार निष्ठा वाली सखी होती है, एक राधा निष्ठा वाली, एक कृष्ण निष्ठा वाली और कहता है उभय निष्ठा वाली। अभी आपके बोलने की समझ में नहीं आएगा, इतना ही आप समझ याद रखो। मंजरी उसकी कहा जाता है ये राधा जी की जो 5 प्रकार की सखियां बताया गया, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। ये ललिता विशाखा ऐसा प्राण पृष्ठ सखी कहा सर्वोत्तम है।
उनकी अनुगत्य में एक एक युद्ध बनता है, गण बनता है, ये सब बहुत है। अभी एक शब्द में बोलने में आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए कुछ आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जैव धर्म अध्ययन करो है, और तब पढ़ते पढ़ते होगा। इतना ही मंजरी उसी कहा जाता है जो समस्या एकमात्र राधा निष्ठा प्रयाण होती है। क्या बताया? राधा निष्ठा है, राधा निष्ठा प्रयाण होती है। पत्नी किसको कहा जाता है? अब बताओ। जो पति के प्रति निष्ठा रखती है, एक निष्ठा होता है उसे पत्नी कहते हैं। घर में तो और भी तो हमारी बहन है, माँ है, ननद है, सास है? तो पत्नी उसे कहा जाता है जो पति के ऊपर निष्ठा रखती है, तो उसको तो पत्नी कहा जाता है। समझ में? क्योंकि पत्नी सबकी सेवा करती है, अपने सास को, ननद को, देवर को, सबकी वो है खाना खिलाती है, खाना परोसती है कि नहीं है? ना केवल अपने पति को खिला दिया है, क्या करती है? सास के भी तो खिलाना पड़ता है, रसोई बनाना पड़ता है। ना केवल पति के लिए बना दो और सास क्या खाए नहीं खाए वो हमें कोई जरूरत, ऐसे नहीं है। बात ऐसे ही है कि नहीं? हम हिंदू है ना मुसलमान है, हिंदू है? सीधी बात सुनो अच्छी तरह। पारिवारिक जीवन तो सुनो है। पारिवारिक जीवन में क्या करता है? सबको ध्यान रखना पड़ता है? किंतु निष्ठा किस में है? पति के पर निष्ठा रहता है। सबको सेवा करते हुए पर भी निष्ठा किस में रहती है? पति में है। ये नहीं है जो निष्ठा, ये नहीं कह रहे हैं जी केवल पति को खिला दो और कोई खाया नहीं खाया उसकी चिंता नहीं, ऐसे नहीं। सबको ध्यान रखना पड़ता है। उसके तो पत्नी कहा जाता है। माँ किसको कहा जाता है? माँ भी सबके ध्यान रखते हैं, किंतु अपने बच्चे के प्रति अधिक निष्ठा रखते हैं। ये निष्ठा की बात है कि नहीं? इतना ही समझो, ये सब निष्ठा के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। आज 5 प्रकार सखी, 3 प्रकार के निष्ठा संपन्न सखी कहा गया। एक होता है राधा निष्ठा सखी, एक है कृष्ण निष्ठा सखी, और एक उभय निष्ठा सखी। आप तो याद नहीं रखते, 10 बार पूछते रहते, लिखते नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, अभी जो बता रही हूँ उल्टा सीधा मत सुनो, वो डिफरेंट है। अभी जो कह रही हूँ उसके सुनो। ये मैं एक बोलता हूँ, दूसरी चिंता करते हो, इसलिए भूल जाती हो, और ना लिखते हो ना कुछ करते हो, 10 बार पूछता रहो और इधर उधर सुनते रहते हो। आपको पता नहीं सब क्या बोलते हैं, वर्लपुल हो जाता है ना, खिचड़ी बनते रहता है। अरे पहले तो सुनो क्या बोलते हैं। मैं तो सपक्ष विपक्ष अभी ये सब नहीं बोल रहे, अभी है निष्ठा केवल राधा निष्ठा। राधा जी के 3 प्रकार के निष्ठा संपन्न सखी कहा जाए है। राधा जी के सखी कितने बताए? 5 प्रकार के सखी बता रहे हैं। 5 प्रकार, 5 टाइप्स ऑफ सखीज ऑफ श्रीमती राधिका। पढ़ो मेरे वो क्या बोले, ज्वेल्स ऑफ द हार्ट पढ़ो अच्छी तरह से, और इधर उधर ग्रंथ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो सब जैव धर्म से, उज्जवल निर्मणि से सब कलेक्ट करके मैं एक ही ग्रंथ में रख दिया, जिससे आपके ढूंढना ना पड़े, आपके कष्ट नहीं पड़े। प्रसाद बना करके रख दिया, केवल खाओ। खाना नहीं चाहते तो क्या करें? आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा, यदि अपने ढूंढना पड़ेगा। उज्जवल निर्मणि ढूंढो है, भक्ति रसामृत सिंधु ढूंढो, आपके बहुत ग्रंथ ढूंढना पड़ेगा। और मैं तो ढूंढ करके आपको रख दिया, तस्वीर बना करके रख दिया, केवल हाथ उठाओ और मुख में डालो। हाँ, भजन तो करना आपको पड़ेगा ना। गुरुदेव कहते हैं आपको मैंने दिया हरिनाम दिया, आपको तो हरिनाम करना पड़ेगा ना। मैं करूं तुम्हारे लिए, मैं करूं कि तुमको करना पड़ेगा? भूख तुम्हें लगता है, तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। अब आदि सही है कि नहीं है? आप बताओ, आप अपने बेटा के लिए भोजन बना दिया, किंतु बच्चा को क्या करना पड़ेगा? अपने तो भोजन करना पड़ेगा ना मुझे है। आपने अपने बेटा के लिए भोजन बनाया कि नहीं बनाया? और बेटा के कहते बेटा तू एक खा लो,
अब बेटा नहीं खाया तो आप क्या करोगे? इसलिए भोजन आपको करना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? समस्त शास्त्र के एकत्रित करके हमारे गुरु वर्ग ये दिखा रही, वो हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अनुशीलन करना पड़ेगा, है भजन करना पड़ेगा। नाम करते करते तब वो शास्त्र अध्ययन और नाम करते करते दोनों आपको देखना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन और हरिनाम। शास्त्र अध्ययन के द्वारा आपका ज्ञान होगा और हरिनाम करते करते ये सब चिंतन जो तब विज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? शास्त्र अध्ययन के द्वारा आपके ज्ञान होगा और हरिनाम करते करते वही ज्ञान कैसे होगा? रियलाइजेशन होगा। बिना हरिनाम से रियलाइजेशन नहीं आएगा। दोनों आपके करना पड़ेगा, बैलेंस करना। समझ में आ रही है? इसलिए राधा जी के 5 प्रकार के सखी बताया मैंने। एक सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी। ये प्राण पृष्ठ सखी ये ललिता विशाखा है, ये सर्वोत्तम अष्ट सखियां जो है राधा जी की, जो प्रधान जो है सखियां जो है 8 प्रोमिनेंट सखी जब श्रीमती राधिका, ललिता विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, चंपक, लता, ये सब क्या राधा जी के अष्ट सखियां। इसमें भी सर्व ये 8 सखी में श्रेष्ठ कौन है? ललिता। ललिता देवी प्रधान, शी इज कॉल्ड चीफ कमांडर एंड प्राण प्राण पृष्ठ सखी ललिता। ललिता ये ललिता दी अष्ट सखियां जो है, इनकी भी निष्ठा भी दिखा है, उभय पक्ष, उभय निष्ठा दिखाया गया। वही बने दे आर निष्ठा बोथ राधा एंड कृष्णा। फॉर दिस रिगार्ड इन लोग के कहा जाता है उभय निष्ठा है। एक्चुअली उभय निष्ठा इसलिए कहा है, कभी कभी ये लोग स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंटली दे ऑल्सो मीट विथ कृष्णा है, इसलिए इनके उभय निष्ठा भी रखा गया। ये सब निष्ठा के ऊपर विचार है। और राधा निष्ठा किसको कहा जाती है? राधा जी की एकांतिकी निष्ठा है। राधा जी के छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी वो। राधा जी जहां पर है छाया के भांति वहीं पर पहुंच जाती है। जैसे हमारे शरीर और हमारे छाया एक साथ में चलती कि नहीं चलती? आप चलते हो आपको छाया ना, छाया इधर है, आप दिल्ली चले जाते हो, हैं? छाया और काया आज समझे, जिससे एक ही साथ चले। उसी प्रकार राधा जी के साथ ये समस्त सखियां जो है, कौन सा सखियां? ये मंदिर है, इसको कहा जाता है राधा निष्ठ सखिया, राधे के प्रति निष्ठा। कृष्ण के साथ कभी स्वतंत्र रूप में मिलती नहीं है। राधा जी कभी कभी इनके परीक्षा लेती है, या हमारे प्रति निष्ठा रखते कि नहीं रखते। कभी कभी कृष्ण के द्वारा उनको परीक्षा लेती है। ऐसा वर्णन है सब। ऐसे राधा निष्ठा, और एक होता है कृष्ण निष्ठा सखी भी है, जैसे बिंदा, बिंदारिका, धनिष्ठा, ये सब कृष्ण के प्रति निष्ठा रखने वाली। राधा जी की सेवा भी करती है, जैसे वृंदा देवी जो है सेवा भूमिका रोल, वृंदा देवी के रोल क्या है? सर्वोत्तम। ये राधा कृष्ण की कुंजभंग आदि लीला में, राधा जी की मिलन आदि लीला में है, वृंदा देवी की जो रोल जो है, भूमिका जो है, अतीब सुंदर और मधुर का है। हम लोग इसलिए वृंदा देवी की और स्तुति करते हैं ना, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणार। राधा गोविंद की मिलन की वृंदा देवी की बहुत भूमिका है। आज भूमिका मैंने रोल, रोल, राधा जी की भूमिका, वृंदा देवी की भूमिका रोल है। कितना सुंदर वृंदा देवी। इसलिए वृंदा से स्वयं राधा जी वृंदावन को किसको दे दिया?
इसलिए कह रहे हैं दत्ताधिकारे विश्वभानु पुत्र है। क्या बोलते हैं बिंदाष्टक में, क्या सो हरि समस्त अरे वृंदा देवी की स्तुति हम लोग रोज करते हैं ना, सब भूल गया सब। दत्ताधिकारे श्रीमती राधिका देखो अपने वृंदावन धाम को किसके नाम में ये कर दिया, विल कर दिया है, वृंदा देवी के नाम। स्वयं वृंदावनेश्वरी होकर के, वृंदावन के अधिश्वरी होकर के है, देखो वृंदा देवी को विल कर दिया, जाओ तुम्हारे नाम में वृंदावन कर देता हूं। जैसे पिता अपने संपत्ति को पुत्र को दे देता है, लिखे नहीं तो अपने पास जाए, तथापि विल करके देते हैं। आज समझिए नहीं, देखो श्रीमती राधिका कितने उदार है, क्यों? ये वृंदा देवी इतनी सेवा करती है। कहां से लोग है? इसमें लिखा है ना, इसे देखो दत्ताधिकारी विश्व रसाभिराज है, थर्ड वर्स ओके। समस्त वैकुंठ शिरोमणु श्री कृष्ण वृंदावन धन्य धामनि दत्ताधिकारी विश्वभानुपुत्रा वृंदे नमस्ते चरणार बिंद है। ये वृंदावन की अधिश्वरी कौन है? राधा जी है, किंतु देखो विल किसके नाम कर दिया, राधा ने किसके नाम में विल कर दिया, विल समझते हो ना। जाओ वृंदादेवी, वृंदावन वृंदादेवी के नाम में प्रसिद्ध है, वृंदावन फेमस फॉर द नेम ऑफ वृंदादेवी। इसलिए लिखा है ना, समस्त वैकुंठ शिरो मनोश्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनि दत्ताधिकारी विश्वभानुपुत्रा वृंदे नमस्ते चरणार विंदम। हे वृंदे विश्वानुनंदिनी श्री राधिका निखिल वैकुंठ के शिरोमणि, वो अशेष गुण समन्वित होकर के परम पवित्र श्री कृष्ण धाम वृंदावन में आपको अधिकार प्रदान किया है। देखो वृंदावन किसके नाम में प्रसिद्धि है? वृंदा देवी के नाम है, वृंदावनम है, क्योंकि ये सेवा करती है। जैसे पिता के अनेकों पुत्र है, 4-5 पुत्र है, मान संतान है, सभी को तो संपत्ति दिया जाता है, किंतु जो पुत्र पिताजी के अधिक सेवा करते हैं, पिता प्रसन्न होकर के उनकी कुछ संपत्ति अधिक रूप में उस संतान के ऊपर वो विल करके जा गए हैं, दे सकते हो, है कि नहीं है? चलो ये बेटा मेरा बहुत सेवा किया, तो इसके लिए मैं अधिक रूप में देता हूं। सबके बराबर नहीं देते वो, जो पुत्र अधिक रूप में पिताजी की सेवा किया है, तो पिता क्या करते हैं, अपने कुछ संपत्ति उस पुत्र के ऊपर अधिक संपत्ति दे करके जाते हैं, विल करके जाते हैं। क्योंकि पिता जानते हैं हमारे मरने के बाद हमारे 4 बेटाएं, मानो ये तो समान भागीदार बनेंगे, है, किंतु जीवित रहते हुए वो पिता क्या करते हैं, जो पुत्र पिताजी को अधिक सेवा किया और उसके नाम पर और कुछ अंश जो है उसके ऊपर विल करके जाते, लिख करके जाते हैं, और बाकी संपत्ति फिर 4 बार हो जाए, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉ। समझ में आ रही है, दिमाग में आ रही है? तो उसी प्रकार श्रीमती राधिका है, ये वृंदावन के अधिश्वरी होकर के भी, और उनके की दत्ताधिकार है, उनको दे दे या विल दे दे, क्यों? वृंदादेवी इतनी सेवा करती है। देखो कितने सुंदर, इसलिए वृंदावन है, इसलिए ही तो श्लोक कह रहे हैं समस्त है दत्ताधिकारी विश्वभानुपुत्रा है।
वृंदा देवी कृष्ण पक्षीय गोपी है, कृष्ण पक्षीय गोपी होकर के भी राधा जी की प्रति इतने सेवा करते हुए इतने भूल। अभी समझ में सुनो, केवल दिमाग आपके घुसेगा नहीं। अभी हरिनाम करते करते आप ही घुसेगा। जो बोल रहे उसको सुनो, समझने के लिए अभी प्रयास करने आपको नहीं होगा। आज अब ये सुनते सुनते हरिनाम करते करते तब समझ में आएगा। आज में केवल पहले सुनो, नहीं तो पहले सुनो, इसके बाद हरिनाम करो, फिर सुनो, फिर पढ़ो, फिर हरिनाम करो, तब वो अनुभूति हो। अभी एक बात कहने से आपके समझ में नहीं है। इफ यू हैव नो फर्स्ट इंप्रेशन, इफ आई टेल वन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। एक व्यक्ति के मृदंग सिखाते हैं ना, जिसके पूर्वजन्म में संस्कार है, अनेक जन्म उसको मृदंग बजा करके आए, क्योंकि एक बार कह देने से बच्चा सीख लेता है। आज जिसके संस्कार नहीं है उसको 10 बार बोलना पड़ता है, हाथ देकर उसको लो, तब भी हाथ इधर जा रहा है उधर जा रहा है कि नहीं? कुछ लड़कियों को हम देखते हैं, उसके एक बार बोल दो तो वो अपने बजा लेते हैं। और जिसके संस्कार नहीं है, माने फर्स्ट लाइफ ही डिड नॉट प्ले मृदंग, तो उसको क्या करना, उसके संस्कार देना पड़ता है। बार बार उसके हाथ लेकर इधर बजाओ, इधर बजाओ, ता थई थई ना घेर थई। आज में हाथ को किस प्रकार चलाना है सिखाना पड़ते हैं, धीरे धीरे है। आज में हाथ थई थई ना घेर, किस प्रकार कितना बार उसको बाएं हाथ कितना बार मारना पड़ेगा और दाएं हाथ कितना बार मारना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ता है कि नहीं? है तेरे खेटा है, कितने बार बाएं हाथ चलेगी और कितने बार दाएं हाथ चलेगी, उसको दिखाना पड़ता है। जिसके पूर्वजों ने संस्कार है, अनेक जन बजा करके आए, संस्कार है, वो दो एक बार दिखा देने से वो अपने आप करते हैं। अजीब संस्कार नहीं, 10 बार बोलो तो बोलते 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 एक बार आ गए। हाँ आ समझ में आ रही कि नहीं? समझने के लिए प्रयास करो। संस्कार नहीं था मैं क्या करूं, संस्कार बनाना पड़ता है ना। संस्कार नहीं है तो इसे छोड़ दे, नहीं बता रहे। आप कहो जो मेरा तो पूर्वजन के संस्कार में मृदंग बजाना मैं छोड़ दूं, ऐसे नहीं करो। संस्कार प्रैक्टिस करो। है ओ फ्लाइट चला गया, 10 बज गया था। वो लीला है ना, क्या बोले, छत्रवन की जो लीला जो है स्वयं कृष्ण राधा जी को अभिषेक कराया है। स्वयं कृष्ण राधा जी को अभिषेक कराया। इसलिए जीव गोस्वामी पाद एक ग्रंथ लिखा है, माधव महोत्सव ग्रंथ। क्या बोला है? माधव महोत्सव ग्रंथ। उसमें ये सब वर्णन दिया गया। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं पढ़ो तो आपकी समझ में नहीं आएगा। है अच्छा, माधव महोत्सव ग्रंथ। स्वयं कृष्ण राधा जी के वृंदावन की जो है अधिष्ठरी बना दिया है। आज अनेक लीला कथा भी है आज है। और राधा जी को है उसके ये दिया है। और कृष्ण है संग क्या गया, छत्र धारण किया, इसलिए नाम हो गया छत्रवन है। एक कथा सुनने के लिए, बात जाने के लिए आप वो पढ़ो, गुरुदेव के जो है वो ब्रजमंडल परिक्रमा में छत्रवन की कथा सुनो। छत्रवन जहां पर स्वयं कृष्ण राधा जी की अभिषेक कराया और डिक्लेयर किया जे श्रीमती राधिका ब्रज की रानी है। और स्वयं कृष्ण छत्र धारण किया है, जैसे राजा की रानी के सिर पर छत्र धारण कर, स्वयं कृष्ण छत्र धारण किया, इसलिए नाम हो गया छत्रवन
है, उसको पढ़ो तब समझ में आए। हाँ, तो लीला के लिए बनाया, ठीक है, किंतु कहाँ की लीला है? ये छत्रवन की लीला है ऐसा नहीं। ये समस्त लीला आदि जो है, इसलिए राधा जी स्वयं है वृंदावन के अधिष्ठान है। और जिसलिए कहता है राधा जी की कहा जाता है राधा रानी कहा जाता है। स्वयं कृष्ण ने घोषणा किया, अनाउंस किया, ये आज से वृंदावन की व ब्रज की अधिश्वरी कौन बनेगी? श्रीमती राधिका है। कृष्ण के राजा नहीं माना जाता है ऐसा नहीं। इसके उसी प्रकार जो है बनाया गया राधा रानी। इसके भी अनेक लीला कथा है, समय तो चला गया है। 10 बज रहे, प्रसाद पाना है, फिर 11 साढ़े 11 बजे निकलना पड़ेगा है। हाँ, पूजा है। वो लीला पढ़ो, छत्रवन की कथा पढ़ो। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही ना है, छत्रवन की वहां पर लिखा है, छत्रवन की लीला कथा है। हाँ? ये आपके बेटा है, क्या नाम है? नाम बताओ, आओ इधर। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? अच्छा, बोला, अच्छा। भक्ति सार का डिसाइपल है, बट रिजेक्ट करेंगे। आप आपका शरण करो के शिक्षा गुरु के लिए ना। ठीक है। प्रभु से दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशित श्री गुरु करुणा सिंधु आदम सुंदर बंधु लोकनाथ के रचिवाना जय श्री गुरुदेव की जय, वैष्णव वृंद की जय, श्री रूप गुरुवर की जय, श्री पाद भक्तवृंद वन महाराज की जय। राधे श्याम। 10 बज गया, मैं इतने समय तो बैठा हूँ 3 घंटा। बोल गया, हमको बोला दिया, नहीं है बोला बोल गया। गोपाल मंत्र दिया ना, गोपाल मंत्र ही भोग लगा। गुरुदेव की जय, श्री लाल की जय, जय श्री राधे।